So, dear students, welcome back to our today's lecture. So, आज के लेक्चर में हम अपना जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ आवर symmetric top molecules. So, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और वहां पे हमने डेरिवेशन निकाला था फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम व्हिच वी कैन कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, एसिमेट्रिक एंड spherical top molecules, how the rotational spectra are differentiating, or we can say क्या rotational spectra में change आते हैं जब आपके molecule linear से I can say symmetric top molecules आ जाते हैं, तो क्या उनकी rotational spectra में क्या ज्यादा कुछ change आता है या कम change आते हैं. So this category can be belong to, we can say, the rotational spectra of I can say Cn or Sn molecules where S is greater than 3. जहाँ पे आपका जो n होगा, that is the number of atom in the molecule. When the number of atom in the molecule is greater than 3, then we can say that that type of molecules can either belong to symmetric top or asymmetric or spherical top. So जब हम symmetric top molecule की बात करते हैं, तो these symmetric top molecules are of two types depending upon the movement of inertia along the three principal axes. एक हमारे पास आता है प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, जो कि हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस करके आए हुए हैं, डिस्कस कर चुके हैं. एंड द सेकंड वन इज आवर ओब्लेट टाइप सिमेट्रिक टॉप. ओब्लेट टाइप सिमेट्रिक टॉप. तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि प्रोलेट कौन सा है और आपका आई कैन से ऑब्लेट कौन सा है. तो अगर आपकी if the value of your n is greater than 3 and if the molecule is non-planar, then the molecule will belong to your prolate type symmetric top. And if the value of n is greater than 3 and the molecule is planar, then that type of molecule belongs to your oblate type symmetric top. Now, यहाँ पे कंडीशन क्या है सिमेट्रिक टॉप के लिए? सिमेट्रिक टॉप के लिए हमारे पास कंडीशन ये था कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इफ वी टेक थ्री प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज IA, IB and IC, then for a prolate type symmetric top, the condition is IC is equal to IB, that is movement of inertia along C axis and B axis is equal, and these two movement of inertia is greater than movement of inertia along IA axis. So this is the condition for the molecule, for a molecule to be your prolate symmetric top. The best example here is, for example, methyl fluoride, that is CH3F, methyl chloride, that is CH3Cl. Yeah, we have CH3Cn or NH3. So these are few of the molecules which belongs to your prolate type symmetric top. And the second category is our oblate asymmetric top, and for these, the condition for the movement of inertia is IC is equal to IB, but the movement of inertia along these two axes is less than your IA. And for both the molecule, I can say this IA is not equal to 0, which is for the linear molecule, the IA is equal to 0. So for both symmetric top, the IA movement of inertia along IA axis is not equal to 0. So these two are the important category of our symmetric top molecules. So here we have some examples. For example, BCl3, we have BF3,
we have C6, H6, etc. So these are the few examples of oblate symmetric top molecules, and these are few examples of correlate symmetric top molecule. So to identify these two categories, I have set up the condition that for a molecule to be prolate symmetric top, and that is NCN is greater than 3 होना चाहिए और इसके साथ नॉन पोलर होना चाहिए, वो आपका सिमेट्रिक टॉप प्रोलेट टाइप सिमेट्रिक टॉप कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। और अगर आपका एन जो होगा ग्रेटर देन 3 है और वो मॉलिक्यूल अगर प्लेनर है, अगर इन सब तीनों मॉलिक्यूल्स को हम देखेंगे तो these three are planar molecules. So if the molecule is planar and n, that is the number of atom is greater than 3, यहाँ पे क्या है 3 क्लोराइड है, 1 बोरॉन है 4, 3 फ्लोराइड 1 बोरॉन 4, यहाँ पे 6 12 है। तो अगर आपका n, that is the number of atom is greater than 3 and if the molecule is planar, then that will belong to your this oblate symmetric top. Now let's discuss the I can say the rotational spectra of this symmetric top molecule. अगर हम ऐसे symmetric top molecule की हम rotational spectra हम लेते हैं, let's take for example the molecule is your, I can say, methyl fluoride, that is CFH3, ये आपका molecule है, ये आपका है प्रोलेट टाइप सिमेट्रिक टॉप। और IA, IB, IC हमने कहा था कि IB, IA जो आपका एक्सिस है वो अलोंग द एक्सिस होगा, जहां पे C और F जो बॉन्ड है इस प्रिंसिपल एक्सिस यहां से फॉलो अप करेंगे। सो दिस इज IB। यहाँ कुछ आपका इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो इफ दिस इज IB एंड दिस इज IC, सो इन तीनों जो एक्सिस के अराउंड आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस है वो बिल्कुल बॉन्ड एक्सिस के पास से हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ 3 मॉलिक्यूल को ही रोटेट करना, 3 एटम को ही रोटेट करना पड़ रहा है, 3 H को, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा कम होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो आपको सारे एटम्स को चेंज करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्जर इन केस ऑफ प्रोलेट मॉलिक्यूल। नाउ अगर हम इनकी रोटेशनल स्पेक्ट्रा को अगर आप डिस्कस करेंगे, नाउ इफ वी डिस्कस द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, हियर हमें जो चाहिए, हमें 2 इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर की जरूरत है, ठीक है। हियर वी नीड, आई कैन से वी नीड 2 क्वांटम नंबर, हमें यहाँ पे 2 क्वांटम नंबर की जरूरत है। जब हम पिछले लेक्चर्स में हम दूसरे लीनियर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमारे पास एक ही क्वांटम नंबर था, दैट इज आवर रोटेशनल क्वांटम नंबर J। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका IA है जो कि either लेस देन और ग्रेटर देन IB इज इक्वल टू IC। सो हमारे पास 2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक आपके पास IA है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक क्वांटम नंबर चाहिए, और IB और IC बराबर है, तो इन दोनों के बीच में एक हमें क्वांटम नंबर चाहिए जो कि इन 2 एक्सिस के थ्रू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी राइट हियर दैट वी नीड 2 क्वांटम नंबर, one is to explain IA and the another is for IB and IC. So now let's take the first quantum number is K, that is इस K को हम कहेंगे कि this is for your IA. The rotation, the K is the rotational quantum number to explain the I can say the movement of inertia along IA axis, जो कि बिल्कुल आपके प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रहा है। और दूसरा हम, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करना है, 2 रोटेशनल जो आई कैन से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करना है, एक आपका IB है और IC है, तो देयर इज ए कॉम्बिनेशन, हमारे पास दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कंबाइन करने के लिए हमें एक क्वांटम नंबर चाहिए, उसको हम J से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑलरेडी हमें पता है कि J यूजुअली रिप्रेजेंट्स द टोटल
एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसीलिए हम, क्योंकि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज IB एंड IC, दैट्स व्हाई इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करेंगे J। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज अलोंग IA, मेन एक्सिस को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वांटम नंबर हम यहाँ पे असाइन करेंगे, दैट इज K इज फॉर IA एंड J इज फॉर IB एंड IC। ठीक है, तो जो अर्लियर लेक्चर्स में हमारे पास एक ही क्वांटम नंबर था और वो सब चीज को एक्सप्लेन करता था, यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटम नंबर की जरूरत है। एक आपकी प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करे, दूसरा आपकी और दो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इन दोनों को एक्सप्लेन करे। तो हमारे पास एक के आ गया हमारे पास और एक आ गया J। और दिस के, अगर हम के की बात करते हैं, ये जो आपकी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रहा है और इसमें आपकी जो आई कैन से डाइपोल मूवमेंट चेंज में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब आप J की बात करते हैं तो J आपकी ये इन बिटवीन C एंड F के बीच से इस मॉलिक्यूल को एंड टू एंड रोटेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका तीनों आपकी जो आई कैन से ऑल द एटम्स विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डाइपोल मूवमेंट। तो इसलिए हमें यहाँ पे दो क्या चाहिए था, रोटेशनल क्वांटम नंबर चाहिए था। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये J और K का वैल्यू क्या होगा देन। सो हमें पता है कि ये J इज योर टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो कैन के दिस द वैल्यू ऑफ दिस K आई कैन से हम कह सकते हैं, तो जो K का वैल्यू होगा, K can take any value from plus J to minus J। ठीक है, और J का वैल्यू क्या होगा, J can have any integral value starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 infinity extra। ये आपका क्या है, रोटेशनल या टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू K। और K का वैल्यू होगा, हमने कहा K का वैल्यू प्लस J से माइनस J तक चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ K कैन बी J माइनस 1 होगा, J माइनस 2 होगा और ये होते हुए 0, देन 0 से आगे होते हुए ये माइनस J माइनस 1 और फाइनली माइनस J तक इसका वैल्यू होगा। तो K कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम प्लस J टू माइनस J and the value of J can be any integral starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। So जब आप इसको टोटल करेंगे तो this the total of this K can have a value 2J plus 1। तो ओवरऑल आपका J का जो K का जो वैल्यू होगा 2J plus 1। ठीक है, तो ये दो क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा। बट we know that J is the total angular momentum quantum number and K is the quantum number for your only the principal axis। Therefore K can never be greater than J। K कभी भी J से बड़ा नहीं होगा और always your J is greater than K। तो ये आपका वैल्यू रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है कि K का वैल्यू जो होगा वो हमेशा J से छोटा ही होगा, क्योंकि K हमारे पास एक ही एक्सिस के लिए क्वांटम नंबर है, J हमारे पास टोटल, यूजुअली J हमें रिप्रेजेंट करते हैं टोटल क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। दैट्स व्हाई J द वैल्यू ऑफ J इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ K। नाउ अब हम देखेंगे एक्चुअली आपके पास अगर आप एक सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कंसीडरिंग that the molecule that the symmetric top molecule is rigid। So considering the symmetric top molecule is rigid। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल फिलहाल क्या है, रिजिड है। जब वो रोटेशन करते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आते हैं। ठीक है, और वी कैन से द मॉलिक्यूल इज रिमेनिंग एट इट्स original position under centrifugal force। and if we solve
Schrodinger equation, we can get a, I can say we can get an equation for the energy levels of the rotation, which can be, हमारे पास जो energy level के जो equation बनेंगे, that is EJK is equal to EJK upon HC. HC से हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको हम वेव नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. So the equation be like BJ into J plus 1, बिल्कुल रिजिड रोटर के लिए. इसके साथ साथ हमारे पास जो दो क्वांटम नंबर हमने लिया था, उसके लिए हमें दो क्या चाहिए? दो सेपरेट क्वांटम नंबर चाहिए. दैट इज प्लस A minus B K whole square centimeter inverse. So now this is important, and this is the equation for energy of a symmetric top molecule, considering that the molecule is rigid. Now ये यहाँ पे आप दो चीज है, बी जे जे प्लस 1 बिल्कुल रिजिड रोटेटर की तरह है, और आपको पता है बी क्या है? रोटेशनल कांस्टेंट है, जे इज रोटेशनल क्वांटम नंबर. अब आपके पास यहाँ पे दो चीज आ गए, एक ए आ गया, दूसरा बी आ गया. ये ए और बी क्या चीज है यहाँ पे हम देखेंगे. तो दिस ए इज नथिंग, इट इज जस्ट दे आई कैन से ये ए आपकी रोटेशनल कांस्टेंट है along IA axis, and B and C is rotational constant along other two axes. So I is equal to, I का वैल्यू होगा H upon A का वैल्यू होगा 8 pi square, किसके साथ 8 pi square IA C, और B होगा आपका H upon 8 pi square IBC. ठीक है. So this A and B is nothing, that is just the rotational constant along your axis, or the movement of inertia along IA axis and IB axis. तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि एक सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए अगर एनर्जी की इक्वेशन आपसे पूछा जाए, तो दिस एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू BJ J plus 1 plus A minus B K square. A minus B K square. Now, अब हम आप यहाँ पे हमें important point क्या है कि the energy depends on the value of K. इस equation से हमें ये पता चलता है कि आपका energy जो है वो आपकी K पे depend कर रहे हैं. K means the movement of inertia along your principal axis. That is, अगर हम CH3F अगर लेते हैं, तो K क्या है? आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस प्रिंसिपल एक्सिस. इस एक्सिस के थ्रू आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो था आपका K. इसको हमने नया एक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया था K, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आपका एनर्जी जो है सिमेट्रिक टॉप की वो K पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है. बट इट डजंट मैटर कि आपका मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं. इस पे आपका K का वैल्यू आपका डिफर नहीं होंगे whether your molecule is rotating clockwise or anti-clockwise. Therefore, we can say that for all the value of K greater than 0, हम कह सकते हैं कि जब आपका K का वैल्यू greater than 0 होगा, the rotational energy levels are doubly degenerate, क्योंकि ये K है, K का स्क्वायर है. ठीक है. For all value of K greater than 0, the rotational energy levels are doubly degenerate. तो आपका ओवरऑल रोटेशनल एनर्जी क्या होंगे? डबली डिजेनरेट होंगे ड्यू टू द फैक्टर K स्क्वायर. किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे आपका जो K है वो स्क्वायर फॉर्म में है. तो हर एक K का वैल्यू, जब K का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगा, तो आपका जो एनर्जी लेवल्स का वैल्यू है या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या होंगे? डिजेनरेट होंगे. अब आपका एनर्जी लेवल्स कैसे बनेंगे? आपके पास दो टाइप के सिमेट्रिक टॉप है. एक आपका है प्रोलेट है, दूसरा आपका है ओब्लेट. तो इन दोनों
ये दो जो है एनर्जी लेवल्स में कैसे डिफर करेंगे। अब हमें पता है कि प्रोलेट के लिए जो कंडीशंस है वो आई बी ग्रेटर देन आई है, लेकिन ऑब्लेट के लिए इसका रिवर्स है, आई बी इज लेस देन आई ए। तो इनकी एनर्जी लेवल्स पे कैसे इफेक्ट पड़ेंगे, और हमें पता है कि जो बी है, दिस बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो प्रोलेट की केस में क्या होगा, जब आई बी दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग बी एक्सिस, इसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पिछले आगे हमने कैपिटल आई एन कैपिटल ए बी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, आई बी जो है आपका ग्रेटर देन है प्रोलेट की केस में आई ए। सो बी और ए की रिलेशन क्या होंगे, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, देन हियर इट विल बी लाइक दैट द सॉल्यूशन बी लाइक कि बी आपका लेस देन होगा ए से, इस केस में बी लेस देन होगा ए से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा होगा, बी ग्रेटर देन आपका ए से होगा। ठीक है, अब इसका आपकी अभी जो एनर्जी इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो आपका अगर एनर्जी लेवल ऐसे हैं तो ये आपका जीरो है, दिस इज योर, फॉर एग्जांपल इसको हम कहेंगे बी जे जे प्लस वन, ये आपका इस साइड ऑब्लेट के लिए जीरो है, दिस इज बी जे जे प्लस वन। तो आपका नेक्स्ट फैक्टर का इफेक्ट क्या पड़ेंगे, क्योंकि प्रोलेट की केस में हमने देखा कि बी आपका क्या है, बी आपका लेस देन है ए से, और ओवरऑल आपका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन हमारा ये था ई इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये बी आपका क्या है, लेस देन है ए से, इसका मतलब है आपका ये जो पॉजिटिव फैक्टर है इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बी कम होते जाएंगे, ओवरऑल आपका ये इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव बनेंगे। तो आपका एनर्जी लेवल जो होगा वो स्लाइटली इंक्रीज होंगे, फॉर्म इतना आपका एनर्जी इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉजिटिव फैक्टर, दैट इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे क्या होगा, बी आपका ग्रेटर देन ए है, तो इस केस में ऑब्लेट की केस में क्या होगा, बी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और बी का वैल्यू जितना बढ़ेंगे ये नेगेटिव फैक्टर बढ़ता जाएंगे, और आपका एनर्जी जो है लेवल थोड़ा स्लाइडली डिक्रीज होंगे। नाउ दिस इज योर एनर्जी लेवल, बट ओवरऑल वी कैन से that for every value of k greater than 0, the rotational energy level is doubly degenerate, because the energy is depending on the value of k, and the k is in the square form. Overall आपके लिए k क्या है, k है आपका square form। ठीक है, तो ये था आपका energy level. Now let's come to the selection rule for your symmetric top. Selection रूल, अब सिलेक्शन रूल क्या बताते हैं यहाँ पे, द सिलेक्शन रूल फॉर सिमेट्रिक टॉप इज दैट द डेल्टा जे इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे दो रोटेशनल क्वांटम नंबर है, एक जे है और एक के है। तो जे के लिए हमें सिलेक्शन रूल होगा दैट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जे शुड बी प्लस माइनस वन इज बिफोर, जैसे कि हमने पहले जो पिछले केस में हमने सारे वेदर इट इज diatomic rigid, non-rigid diatomic और linear polyatomic molecules, सारे में हमने देखा कि selection rule that the change in the rotational quantum number should be plus minus one। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक और क्वांटम नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया था, that is k, k should be zero। So the selection rules for a symmetric top molecule is that the value of j, change in the value of j should be plus minus one, and the value of change in the value of k should be zero। तो k में आपका कोई चेंज नहीं होना है, सिर्फ चेंज होंगे तो आपका डेल्टा j इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सो अगर इसको हम अप्लाई करते हैं, इफ वी apply this selection rule to above equation, हमें जो अभी इक्वेशन एनर्जी के लिए मिला है, and if we want to see the spectrum of a symmetric top molecule
इट इज गिवन बाय, आपको कैसे मिलेंगे? स्पेक्ट्रम आने के लिए हम क्या देखते हैं? एनर्जी डिफरेंस देखते हैं हम, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ई जे प्लस वन, के में कोई चेंज नहीं आना है तो के उसी तरह रहेंगे, ई जे के। तो एक एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल प्लस वन से हमने माइनस किया लोअर एनर्जी लेवल। सो ओवरऑल म्यू जे के दिस विल बी इक्वल टू, पहले हमें जे इज इक्वल टू जे प्लस वन पुट अप करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या था इक्वेशन? द इक्वेशन बी लाइक बी जे जे प्लस वन, यही था, प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर। तो अब जे के जगह हम जे प्लस वन पुट करेंगे तो द इक्वेशन विल बी लाइक बी जे प्लस वन, यही होगा, ठीक है। जे प्लस वन ये आपका बनेंगे जे प्लस टू प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट हमारा ये, ठीक है, माइनस ई जे। अब आपको जे का वैल्यू बिल्कुल जे ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो दिस विल बी लाइक बी जे जे प्लस वन प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल योर इक्वेशन विल बी 2bj प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका ओवरऑल जो स्पेक्ट्रम के लिए या एनर्जी लेवल्स के लिए जो इक्वेशन आएंगे, दैट इज न्यू बार जे के, that is from higher energy level to lower energy level, will be equal to 2bj plus 1. 2bj plus 1 बिल्कुल आपकी रिजिड रोटेटर की तरह ये आ रहा है। अब यहाँ पे आपको देखने important point to be noted here is that the spectrum is, यहाँ पे आपका क्या important point है? that the spectrum is इंडिपेंडेंट ऑफ के। जो एनर्जी इक्वेशन में हमारे पास एक के था, वो आपकी इस इक्वेशन में स्पेक्ट्रम के लिए जो इक्वेशन हमने डिराइव किया, यहाँ पे कोई भी के नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ ए सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ के, व्हाई, एंड आई कैन से दैट द रोटेशनल changes about the principal axis, or I can say symmetric axis, do not give rise to a rotational spectrum. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस से जब आप मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, अगर हम इसी मॉलिक्यूल्स को रिपीट करते हैं CFH3, जब आपका मॉलिक्यूल रोटेट होता है अलोंग दिस प्रिंसिपल एक्सिस और सिमेट्रिक एक्सिस, दैट इज के, यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल में कोई, आपकी मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। दैट्स व्हाई योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सो वी कैन से कि यहाँ पे हमारा जो है के अकॉर्डिंग कोई भी डाइपोल मूवमेंट में चेंज नहीं होते हैं। देन वी कैन से द रोटेशन along this principal axis will not or cannot interact with microwave radiation, and due to which there will be no effect of the rotation along this principal axis on the spectrum of your symmetric top molecule. Hence we can say that the spectrum is very similar to what we have for a linear molecule. So आपका linear molecule और symmetric top molecule का rotational spectrum बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, so this is about your symmetric top molecule. अगर हम और अगर polyatomic molecules की बात करते हैं, for example हमारे पास है how we have our spherical top molecule. Spherical top molecule.
तो spherical top molecule में क्या होगा? We know that in case of spherical top molecules, all the moment of inertia, that is IB is equal to IC is equal to IA. तीनों moment of inertia along the three axis is equal. आपका equal आता है. जब आपका ये equal होंगे तो ये क्या होगा? Your spherical molecule will be microwave inactive. जब आपका microwave inactive होंगे, then there will be no spectra in such cases. And the third important category is our asymmetric top molecule. Top molecule. अब इसके लिए कंडीशन था हमारे पास IA is not equal to IB is not equal to IC. तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक दूसरे से अलग होते हैं. तो क्या होगा? इसका स्पेक्ट्रम और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे. ठीक है. Or we can say the plus minus one degeneracy factor which exists in case of our symmetric top molecule is broken here. ठीक है. तो यहाँ पे प्लस माइनस के degeneracy factor is broken and the spectrum of your asymmetric top molecule is very complex. इसका spectrum जो होता है, spectrum of asymmetric top molecule is very complex. क्योंकि तीनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अलग हो रहे हैं. तीनों एक्सिस के थ्रू आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होंगे, तो उसका इफेक्ट आपके स्पेक्ट्रम पे पड़ेंगे. तो इसका स्पेक्ट्रम भी उतना कॉम्प्लेक्स हो गए और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव द एनर्जी इक्वेशन फॉर ए सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल. तो उतना आपका एनर्जी इक्वेशन डिराइव करना भी उतना डिफिकल्ट होगा. और ये हमारे इस वाले जो चैप्टर की आउट ऑफ स्कोप है, तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे. तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. ठीक है. तो ये हुआ आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ योर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है. सो थैंक यू फॉर टुडे.